की विश्वास योग्यता के ऊपर सुनते आ रहे हैं। And similarly, there were many topics that came before the faithfulness of God. और इसी विषय से जुड़े हुए हमने कई और भी विषय हमने विश्वास योग्यता के ऊपर परमेश्वर के वचन से सुने। But with the meditation and much contemplation, with the inspiration of the Holy Spirit, the God has given through His servant a new topic for us in this new year. और परमेश्वर के दास ने बहुत प्रार्थना और बहुत चिंतन मनन के साथ इस साल के लिए एक नया विषय हमारे लिए दिया है। Does anyone know here what is that topic for New Year? I think at least if not the believer, but at least Bible college student can know what is the topic for this year. और In English we call it LMJC. इंग्लिश में उसको LMJC बोलते हैं। What is the full form of that? Life and ministry of Jesus Christ. यीशु मसीह का जीवन और उनकी सेवा कार्य। That is the topic that we are going to hear in this new year as a message that will be preached by all through the pastors and teachers of Central India Theological और Seminary. यीशु मसीह का जीवन उनका सेवा कार्य इन महीनों के दौरान हम इस सेवा में हम सुनेंगे। परमेश्वर के दास लोग शिक्षक लोग इस विषय पे हम अपने चर्च में प्रचार करेंगे और सभाओं में प्रचार करेंगे। So let's read one more time the chapter 2 and verse number 5. और आइए हम एक बार और उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां पद हम पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। My dear ones, this letter is written by the apostle of Christ, Paul, who was also in the prison for the time while he was writing this letter. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिय भाइयों बहनों, ये पत्र जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। जब वो ये पत्र को लिख रहा था उस समय वो बंदी गृह में था। And when he was writing, he was not in a very favorable situation in which he can have joy and write about the letter of joy. और जब वो इस पत्र को लिख रहा था वो ऐसी परिस्थिति में नहीं था कि वो बहुत ही आनंद को मना सके। He was in the trouble, he was in the sorrow, he was in the agony. और जब वो इस पत्र को लिख रहा था वो दुख में था, तकलीफ में था, वेदना और पीड़ा में था। And if you know, the letter of Philippians is also known as the other name of the letter of joy. और यदि आप इस पत्र के दूसरे नाम को देखेंगे तो इस पत्र को प्रेम का पत्र कहा जाता है। Letter of joy. आनंद का पत्र कहा जाता है। Because there are many verses in this letter where Paul says again and again, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. Again I say, rejoice in the Lord. और क्योंकि हम इस पत्र को जब पढ़ते हैं तो कई बार बार को पढ़ने को देखने को मिलता है। And पौलुस कहता है कि परमेश्वर में आनंदित हो, परमेश्वर में आनंद हो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर में आनंदित हो। And very sadly, while we were coming from CITS to this house, Brother Bernard was along with me. और जब हम बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब हम CITS यहाँ पे आ रहे थे और भाई बर्नार्ड मेरे साथ थे। And while we were coming on the way, we saw one person who was passing by. और जब हम ऐसे आ रहे थे तो हमारे बाजू से एक व्यक्ति निकला। And I don't know who is that man. और मुझे नहीं जान मालूम कि वो कौन था। But the moment Brother Bernard looked at that guy who is passing by, he said one thing. और जब वो व्यक्ति निकल रहा था तो उसको देख के भैया ने कहा एक बात को कहा। और ironically, that guy happened to be a Christian, a servant of God. और देखने से ऐसा लगता था कि वो एक विश्वासी है और हो सकता है कि परमेश्वर का सेवक हो। लगता not, he is a Christian and a servant of God. और वो तो एक परमेश्वर का दास था और एक विश्वासी था। And when we were talking about joy, he said one thing that time. और जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात को कहा। That I never saw smile on the face of this guy. और उन्होंने इस कथन को कहा कि इस व्यक्ति के चेहरे पे मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। It seems like that he is not happy. He is not happy with the ministry. He may not be happy with the Christian life. He may not be happy with the people that he is living with. But there is something. Whenever I see his face, it's like a 12 o'clock. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जब कभी भी इस व्यक्ति को मैं देखता हूँ तो उनके चेहरे पे कभी कोई मुस्कुराहट नहीं रहती। हो सकता है कि वो अपने सेवा से प्रसन्न ना हो सकता है कि अपनी सेवा उसे अपने लोगों से प्रसन्न ना हो, उस कम्युनिटी से जहाँ पे वो रहता उससे प्रसन्न। जब भी मैं उनको देखता हूँ उनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। And he was not knowing that I am going to preach from that letter, the letter of joy. और उनको नहीं मालूम था कि मैं उसी पत्र से बोलने वाला हूँ जो आनंद का पत्र कहलाता है। So my dear ones, when we look at Christian life, the main thing that we need to express is a joy through our face, through our life, and the people who meet us may become happy and see that what is the joy in the Lord. तो जो मुख्य बात हमारे जो मसीह जीवन की कुंजी है वो है कि हमारे जब विश्वास किया तो हमारे अंदर एक हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहना चाहिए। जब कोई हमारे संपर्क में आता, कोई हमें देखता है तो होने पाए कि लोग जाने पाए कि हम आनंद से भरे हुए। I am not saying the laugh, people will call you mental. I am saying the joy. मैं कोई हंसी की बात नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हमेशा हंसते रहो, ऐसे भी तो लोग आपको पागल कहेंगे, लेकिन
आनंद को रखो, मुस्कुराहट को रखो अपने जीवन But today is not my topic that I talk about joy. I spoke because this letter belongs to that feeling. But the main theme that I want to emphasize is the attitude of Jesus. और मैं आपको आनंद के विषय में नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये पत्र आनंद के विषय में बात करता है। आज रात्रि को मैं यीशु मसीह के व्यवहार, उनके स्वभाव के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। Because if we're trying to listen and learn from the life and ministry of Jesus, first thing we have to listen that we have to become like Jesus. और यदि जब हम यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवा कार्य को देखते हैं, तो जो पहली बात हमें देखना है तो वो ये है कि हमें यीशु मसीह के समान बनना है। There are many gurus and many saints and many the proponent of religion came and gone by the face of the earth. और हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर कई महात्मा सिद्ध गुरु और शिक्षक लोग आए, इस पे आए और वो चले गए। But nobody said that you become like me. और किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि तुम मेरे समान बनो। If you have listened from any leader, any saint or any religious group who runs the people can say you become like me, nobody has ever told. But it's only Bible which tells us to become like Jesus. और हमने ऐसे, आपने शायद ऐसा किसी को सुना हो ना सुना हो जिसने ऐसा कहा हो कि तुम मेरे समान बन जाओ, लेकिन केवल एक ऐसे व्यक्ति ने कहा है जो यीशु मसीह है, उसने कहा कि तुम मेरे समान बनो। So Paul in Corinthians said one time that imitate me as I imitate Christ, but here what he says that let that mind be in you which was also in Christ Jesus. और एक बार पौलुस ने इस प्रकार को कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो जिस प्रकार से मसीह यीशु का अनुसरण मैं करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे समान बनो, तुम मेरे समान। So if I ask you question, what is the attitude of Christ, what would be your answer? और यदि हम ये बात को पूछे कि यीशु मसीह का स्वभाव, उनका व्यवहार क्या है, तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? What is that? If you can think, what is the attitude of Christ? और हम यीशु मसीह का क्या व्यवहार था, उनका क्या चरित्र था? Can you name some of them? क्या आप उसके विषय में कुछ नामों को When Paul says let that, because mind means attitude, behavior, और मनोभाव, स्वभाव, मनोभाव। When you say mind in तुम प्रभु यीशु का मन तुम्हारे अंदर होने पाए, उसका विचार मतलब the way you behave before the people. तो यीशु, उनका हमारा जो मनोभाव, जो यीशु मसीह का मनोभाव क्या था, और जब हम इसके विषय में बात करते हैं तो यीशु के विषय में जब बात आती है तो आप उसके विषय में क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह का कैसा मनोभाव था? So you cannot become like Jesus unless you know what is against Jesus. आप यीशु के समान कभी भी ऐसे नहीं बन सकते जब तक आप इस बात को ना जाने कि यीशु मसीह के मनोभाव के विरुद्ध क्या है। So in this night, as time is very little, I want to talk about the three characteristics from the Bible that represent the worldly attitude. और हम इस छोटे से समय में आपके सामने वो बताना, तीन बातों को रखना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के मनोभाव के विरुद्ध में है संसार के अंदर। Because we cannot become like Jesus if we don't know what is unlike Jesus. और हम कभी यीशु मसीह के समान नहीं बन पाएंगे जब तक इस बात को ना जाने तो जो यीशु मसीह के समान क्या नहीं है। We always think that we have to become like Jesus. Yes, we have to become like Jesus. But unless we know what is against Jesus, we cannot avoid doing that and cannot become like Jesus. हम हमेशा इस बात को बात करते हैं और सुनते रहते हैं कि हमें यीशु मसीह के समान बनना है, लेकिन हम ऐसे नहीं बन सकते जब तक इस बात को ना जानने कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह के समान नहीं है। So there are many characteristics in the Bible that you can find out, but because of the time, I have just selected three characteristics that denotes the worldly attitude among our people. तो हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जो संसार में पाए जाते हैं, लेकिन उनके बीच में से मैंने तीन बातें आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। So let's see the letter of Jude और यहूदा की पत्री हम में आएंगे and verse 10 and 11. If somebody finds, I request you. 11वां पद पढ़ने में। Yeah, 10 and 11, letter of Jude. I hope. यहूदा की पत्री उसका 10 और 11। Yeah, please. पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए गुलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। Yeah. Now you see there are three names written in that one scripture, that is verse number 11. और हम इस पद में देखते हैं जो 11 पद है तो उसमें तीन नाम लिखे गए हैं। And this three person in the one particular scripture denotes the entire attitude of the world that you see today. और ये जो एक पद है और तीन चरित्रों को ऐसा दिखाता है जो पूरे संसार में पाए जाते हैं। And if you see the worldly people, you can see all the behavior and attitude that were there among these three group of people. और हम
यदि इन तीन व्यवहार, इन तीन चरित्रों को देखें तो हम देखेंगे कि पूरे संसार में इन तीन व्यक्तियों के चरित्र पूरे संसार में पाए जाते हैं। And sometimes we as Christian do not know what is the attitude of Christ and what is the attitude of world, and we also fall in the same behavior and we become like these people. कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें इस बात का पता नहीं रहता कि यीशु मसीह का मनोभाव क्या है और इस संसार का मनोभाव क्या है, इसलिए हम कई बार इस सांसारिक मनोभाव में जो यहाँ तीन व्यक्तियों के विषय में दिए गए हैं उनमें हम पड़ जाते हैं, उनके समान बन जाते हैं। It's not like this that once you become a Christian, you are not going to become a man of worldly attitude. और इसका मतलब ये नहीं कि एक बार जब आप मसीह बन गए तो आप संसार में कभी भी उस संसार के समान नहीं बनेंगे। And previous day we were talking with some of our students and the argument was this: where would this Christian go who once have known the plan of Jesus and believed in him and still do the greater crimes than the worldly people? और एक बार ऐसा वाद विवाद हमारे बीच में हुआ, स्टूडेंट विद्यार्थियों के बीच में हुआ कि जो लोग एक समय बहुत ही नामी थे, जाने जाते थे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए और वो फिर कहाँ चले जाते थे। Why they again fall in the trap of this worldly behavior and go and backslide from God? और क्यों वो लोग इस संसार में दोबारा जाकर फंस जाते हैं और वो संसार के समान हो जाते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगते हैं। So I thank God that God has given us this topic again by the servant of God to remind us again what kind of behavior, attitude we should have when we live in this और हम world. इस बात के लिए परमेश्वर के दास का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने उनको ये सब विषय दिया ताकि वो हमें फिर से एक बार और चिता दे कि हमें किस प्रकार से मसीह यीशु के समान बनना है। So let's look the first character. आइए हम पहले चरित्र को देखेंगे। The first name is enlisted. What? Can you read and tell me who is the first person in that scripture? Cain. What is the story of Cain? How can we know what was his attitude? तो हम जानेंगे कि कैन का कैसा व्यवहार था, उसका कार्य कैसा था। Well, how was his attitude? You know the story. How we know him? उसका मनोभाव कैसा था? Can you tell me? क्या आप इस बात को बता सकते हैं? What? Some of them. दूसरों की कान खींचने वाला. Okay, that's a Cain. और क्या? Envy. You can say envy. या Irshya. Envy. We can say envy. When he saw that his brother's offerings are accepted and his not, what happened to his heart? उसके हृदय में जब उसने उसके भाई ने जो बलिदान को चढ़ाया और उसने भी चढ़ाया, लेकिन उसके भाई की बलिदान को ग्रहण किया गया, लेकिन उसकी बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। We know the Cain and Abel. I know some of you may not know. Again, I want to repeat the story of Cain and Abel in the Genesis. और जो कहानी है केन और हाबिल की स्टोरी उत्पत्ति की किताब में पाई जाती है। In which what happens? Both of them were asked to bring a sacrifice to Lord, and when Cain brought, God rejected that, and when then Abel brought, God accepted that. और हम देखते हैं उस कहानी में कि दोनों भाइयों बलिदान को लेकर, भेंट को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में आते। जब कैन ने परमेश्वर के सामने बलिदान को अर्पित किया, परमेश्वर ने उसके बलिदान को तिरस्कृत कर दिया, उसको नकार दिया, लेकिन जब आबिल जो लेके आया तो उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया। So then the first behavior, the worldly attitude we can see in him is envy. और यदि हम पहले उसे मनोभाव को जो कैन के अंदर वो देखते हैं वो है ईर्ष्या। Sometimes we don't like when the people prosper. और हम कई बार जो लोग फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं, तरक्की पाते हैं, उनको हम पसंद नहीं। Sometimes we Christians don't like when we see people are being blessed from the Lord. और कई बार हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए हैं। Sometimes we cannot just bear that person who was living with me now has grown up to the power and the blessings. कई बार हम इस बात को सहन नहीं कर पाते कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहा है, मेरे साथ उठा है और वो बहुत ही मिस्र बहुत ऊंचा चला गया है। I am not talking about the worldly people now. Make sure I am talking about the Christians. मैं अभी संसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ। Because remember, Cain was not a Gentile. क्योंकि जो कैन है वो एक सांसारिक व्यक्ति नहीं था। Who was Cain? कैन कौन था? He was a believer in God, if not Christ. वो तो परमेश्वर में एक विश्वासी था। Why? Because he was bringing offering to the God of the Bible, Yahweh. क्योंकि वो बाइबल के परमेश्वर के पास अपनी भेंट को लेके आ रहा Today also we go every Sunday with taking our offerings to the Lord. और हर संडे हम भी परमेश्वर के पास भेंट को लेकर जाते हैं। The material as well as the spiritual offerings. और जो भौतिक ऑफरिंग को लेकर जाते हैं, बलिदान। उसके साथ ही साथ आत्मिक
बलिदानों को लेके जा So sometimes we do also behave like a Cain. We fill with envy. We cannot see the success of our neighbor, our fellow Christians, and the people with whom we live. और कई बार इस प्रकार से हम भी कैन के समान करते हैं कि ना तो हम अपने साथ वाले को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, अपने पड़ोसी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं और अपनी संग साथी क्रिश्चियन भाई को बढ़ता हुआ देख। So my dear ones, God is reminding us one more time that we should come out of the attitude of envy because it is a worldly attitude. भाइयों बहनों, परमेश्वर एक बार हमें फिर से इस बात को याद दिला रहा है कि इस प्रकार का मनोभाव या प्रवृत्ति हमारी है, तो परमेश्वर कहता है कि उससे बाहर निकल आ जाओ। And second, what is second attitude we can see in Cain? और इस कैन के अंदर हम दूसरी बात को क्या देख सकते हैं? One is envy, ईर्ष्या. What is second one? पहली तो जो ईर्ष्या है, दूसरी क्या देख सकते हैं? क्या होगी दूसरी? बताएं। और कुछ नहीं दिखता उसके जीवन से? हाँ? या झूठ, हत्या, murderer. But before that, let us say hatred. या और घृणा। उससे पहले कि हम हत्या पे आए, हम देखते हैं कि वो एक घृणा करने वाला व्यक्ति था। Means he was the person who began to hate, not only envy. Envy is like a starting point. From envy, he moved to hatred. और हम देखते हैं कि जो ईर्ष्या एक छोटी सी बात है, लेकिन वो उससे आगे बढ़कर नफरत को अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है। And you see a lot of time people around you, when they don't behave good, you start hating them. और हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो हम उनसे नफरत करना आरंभ कर देते हैं। Because we also work in a society where a lot of other people work together with us, and I know many of you also are workers. You work in the different places. Sometimes you see people who are not good toward you. You start first keeping envy, then we develop a kind of hatred in our heart. क्योंकि हम तो सामाजिक स्तर में पाए जाते सामाजिक लोग हैं, कई बार हम सामाजिक कार्यों को करते हैं, हम ऐसे लोगों को आसपास पाते हैं जो कई बार हमारे व्यवहार में ठीक नहीं रहते, तो हम धीरे धीरे उनसे ईर्ष्या करते हैं, उसके बाद में उनसे हम नफरत करना आरंभ कर देते First, हैं। we start keeping separation from them. और पहले तो हम उनसे थोड़ा सा अलगाव करते हैं, Then we start keeping envy against them because they are growing, developing. They bought a new bike, new car, new mobile phone, new clothes. Then we again move forward and start keeping the और hatred. दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि उनके पास कुछ तरक्की हो गई, उनके पास कार है, अच्छे कपड़े आ गए हैं और तरक्की करते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है और फिर हम थोड़ा और उनसे दूर हट जाते हैं। My dear one, this is a worldly attitude. It is not a Christian attitude. मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों की एक सांसारिक स्वभाव है, मनोवृत्ति है, एक मसीह मनोवृत्ति नहीं है। And this all comes because of the material prosperity, nothing else. और ये तो केवल भौतिक आशीषों से, भौतिक उन्नति से आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। Or you see, in Cain and Abel case, the same thing happened. He brought something else which was more expensive and more acceptable because the grain always comes cheaper than the animal. Grains come cheaper than the animal. हम देखते हैं कि जो अनुग्रह है, जो बीज है, वो दाना, अनाज. हाँ, अनाज जो है वो एक जानवर खरीदने से ज्यादा वो सस्ता होता है। So when he saw that he could bring more expensive, more better, his heart was filled with envy and he started hating his own brother. जब उसने देखा कि जो हाबिल है वो जानवर को लेके आ रहा है और वो खुद गेहूं लेके आया, तो उसके अंदर एक जलन आ गई, क्योंकि वो उसके पास उत्तम बलिदान था। And problem in this brotherhood we can see also in our world now. Many family are not living together. और हम देखते हैं कि जो भाईचारे की जो समस्या आज भी हमारे बीच में पाई जाती है, हम देखते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जो एक साथ नहीं रहते हैं। Many brothers, they don't talk with each other. और ऐसे कई भाई लोग हैं जो एक दूसरे से बात नहीं करते। Son do not talk with father, father do not talk with the son. और हम देखते हैं कि पिता बेटे से बात नहीं करता और बेटा पिता से बात नहीं करता। If you have doubt what I am saying, just try to find out with the people among you that really this happens or not. और यदि आपको संदेह होता है तो आप आसपास में लोगों को देखिए, वास्तव में इस बात में ये बात होती है कि नहीं होती है। So we as Christian, my dear ones, we have to avoid such attitude because Jesus was not having such one. तो हमें प्रिय भाइयों बहनों, मसीह होने के नाते इस प्रकार की मनोवृत्ति को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि इस प्रकार से जीसस नहीं था, यीशु मसीह नहीं था। Then what more you can see? You can see envy, you can see hatred. Then what else you can see? Some more things you can see. इनके अंदर हम और क्या देख सकते हैं? हमने ईर्ष्या देखी, हमने उसके अंदर एक नफरत को और जलन को देखा। Then what else we can see? और क्या हम देख सकते हैं? Murder. Yeah, somebody said already murder. What does murder denote in our time? और उसने एक हत्या कर दी। हत्या का क्या मतलब होता है हमारे समाज When you में? see the words of Jesus, you learn something. यदि हम जब यीशु मसीह के शब्दों को देखते हैं तो हमें एक बात सीखने को मिलती है।
In the Old Testament it says when you kill somebody, you have murdered and you have broken the law of God. और यदि हम पुराने नियम में देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो उसने नियम को तोड़ दिया है और तुमने एक व्यक्ति को मार दिया है। But in the New Testament, how can we murder somebody? और नए नियम में हम किसी को कैसे मार सकते हैं? You tell me. Anybody know how can we murder someone in the New Testament? और नए नियम में हम किस प्रकार से एक व्यक्ति का हत्या कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं? Jesus told us how can we do. और यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि हम वो कैसे कर सकते हैं। No. When you call someone fool, और जब आप किसी व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं, if you have read or not in Gospel, Jesus said, if you call your brother fool, then what you do actually? जब एक व्यक्ति को आप मूर्ख कहते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? And you are making your place in the hell. और इसके साथ साथ जब आप ऐसा कहते तो आप अपना नरक में स्थान बना रहे हैं। Means you are planning for yourself to go to hell. और अपने आप को आप नरक जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। So though we may not go on killing everybody, but we have a murderous feeling in our heart toward our brethren. हो सकता है कि हमने किसी को जाके नहीं मारा होगा, लेकिन किसी को मारने के बराबर मनोवृत्ति की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। So my dear ones, let us in this evening when we are hearing the word of God, let the spirit of Cain come out of us. और आइए जब हम इस शाम के समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, होने पाए कि जो केन की आत्मा हमारे शरीर से निकल The little point or little bit of the spirit of Cain that is in us in this evening when we hear the word of God may come out from us. यदि वो केन की छोटी सी भी आत्मा यदि हमारे अंदर पाई जाती तो होने पाए कि परमेश्वर की आत्मा उसको बाहर निकाल दे। May all the envy, may all the hatred, may all the spirit of murder, selfishness may come out of from our और spirit. जो हमारे अंदर ईर्ष्या, जो हमारे अंदर नफरत है और जो हत्या करने की भावना है, वो सब हमारे अंदर से बाहर निकल जाए। And may God help us, may the Holy Spirit help us to become more like Jesus. और होने पाए कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करके हम यीशु मसीह के समान अधिक से अधिक बन जाए। And let's move forward because time is running fast. Who is the second character over there? Will you tell me? दूसरे मनोव्यक्ति को देखेंगे। Who is the second person enlisted there? Balaam. Who is Balaam? और ये बिलाम कौन था? Balaam or Balaam, whatever you call. Who was this guy? ये बिलाम कौन था? If you look at and read the Numbers, यदि आप गिनती की पुस्तक को पढ़ेंगे, there you will find a story about the people of Israel. और वहाँ पे आपको यहूदी इस्राएली लोगों की कहानी मिलेगी देखने को। Enemy wanted to kill Israelites. और शत्रु लोग इस्राएली लोगों को मारना चाहते थे। And they were the people from Amorite, the Amorite people, group of people. और जो वो तो अमोनी लोग थे। But they were not able to kill them. और वो क्योंकि लेकिन वो लोग इस्राएली लोगों को मारने की योग्य Whenever they plan to attack, God saves them. और जब कभी भी वो उनको इस्राएली लोगों को मारने का योजना बनाते, षड्यंत्र बनाते, परमेश्वर उनको बचा लेता। Whenever enemy comes to attack and make some curses, pronounce some curses upon them, God makes it into blessings. और हम जब कभी भी ये लोग उनको श्रापित करने का प्रयास करते या कोई भी ऐसा षड्यंत्र बनाते, परमेश्वर उस बात को आशीष में बदल देता। The enemy comes and speaks, may the people of Israel die with the famine. It becomes, may the people of God receive the blessing. और ऐसा कर लिखा है कि होने पाए कि इस्राएल के लोग एक अकाल के कारण मर जाएं, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर इसको आशीष में बदल देते होने पाए कि इस्राएल के लोग आशीषित हो जाएं, उनके पास भरपूरी। And my dear one, that's what happened once you become a believer in Christ. The people want to speak against you and pronounce curse on you, but when God sees to you, He turns it into blessing, and you all are blessed as you sit here to praise God. आप मसीह बन जाते हैं, लोग आपको श्राप देते हैं, आपका नाश करने का प्रयास करते हैं। जब कोई आपको श्राप देता है, परमेश्वर उस श्राप को आशीष में बदल देता है। So the enemy tried, and many times he tried, and enemy failed. और ये शत्रु ने बहुत बार नाश करने का कोशिश किया, अंततः वो हार गया। And at last they reached to the prophet called Balaam. और अंत में वो उस भविष्यवक्ता जिसको बिलाम कहते उसके पास गए। And what they said after coming to him? और जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? They said that we will give you money over money. You just come toward us and give us some way that we can destroy the people of Israel. और उन्होंने उससे जाके कहा कि हम तुम्हें इतना धन देंगे कि बस केवल इतना करके तू हमारे साथ आ और इस्राएली लोगों को श्राप दे दे। If you want to read the whole story, it is in the Numbers chapter 20, 21, 22, 23. There all you can see this all यदि आप things. इस घटना को पढ़ना चाहते हैं तो गिनती की पुस्तक उसके 21 अध्याय से लेके आप पढ़ सकते हैं। And you see what happens when enemy comes and tells, we will give you gold, we will give you silver, we will give you money, we will give you eat.
food to eat, you come to us and just curse Israel. शत्रु जो प्रॉफिट के पास आते भविष्यवक्ता से कहते हैं कि हम तुम्हें सोना देंगे, चांदी देंगे, तुम्हें भोजन देंगे, जो भी तुम्हें चाहिए हमारे साथ आओ, केवल इतना करो कि इस्राएली लोगों को हमारे लिए श्राप दो। And what he did at the end? और उसने क्या किया अंततः? Bible tells us he sold himself with money. और बाइबल इस बात को बताती कि उसने अपने आप को बेच दिया पैसे में। He went and gave secret plan to the king of Amorite. और उसने देखा कि वो जाके जो रहस्य को उसे अमोराइट के जो राजा को अपना उस रहस्य What was that plan? What was that plan that Balaam shared with the king of Amorite? और वो कौन सी योजना थी जो उसे बिलाम ने राजा अमोराइट के राजा से बताया? He said that you send the women, the ladies, the girls, and Israel will do prostitute, and one night more than 20,000 people die. और उसने इसने कहा कि तुम एक काम करो कि अपने यहाँ से स्त्रियों को, लड़कियों को इस्राएलियों के बीच में भेज दो, और जो वेश्यावृत्ति का काम करते हैं, और एक ही रात में ऐसा किया तो 25,000 लोग, 24,000 people died in one night. 24,000. 24,000 लोग मर गए। And that's what you see. When one man sold himself, such a devastation came in the people of Israel. हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने जब अपने विश्वास को, अपने चरित्र को बेच दिया, तो हम देखते हैं कि कितने सारे लोग मर गए। Similarly, when you as a Christian fail to live Christian life, many people fall and stumble by seeing your life. और हम जब देखते हैं कि यदि हम अपने विश्वास में कहीं गिर जाते हैं, इस प्रकार से अपने आप को छोटे से पैसे के लिए, धनी के लिए बेच देते हैं, उसको लोग देखकर Today many Christians are after money and the material blessings. और कितने ऐसे क्रिश्चियन भाई हैं जो भौतिक चीजों के पीछे और पैसे के पीछे भागते हैं। They do some kind of things in the church to gain favor and money from the people. और वो हमेशा चर्च में कुछ ऐसे षड्यंत्र बनाते रहते हैं जिसके कारण उनको कुछ पैसा मिले और कुछ पोजीशन मिल जाए। And even the today ministers do many things to just for the sake of gaining more money and more money. और यहाँ तक कि परमेश्वर के दास लोग भी बहुत पैसा कमाने के लिए कुछ नाना प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। So when you see the life of Balaam, you can learn one thing, that he was after material prosperity and money. और यदि हम बिलाम के जीवन को देखें तो हमें एक बात सीखने को मिलती है कि वो भौतिक चीजों के पीछे और धन के पीछे था। So what can we learn from his life? तो हम उसके जीवन से क्या सीख सकते हैं? That we as Christian, as a people who live in world, must save ourselves from the material prosperity and blessings or material benefits that we go after. और हम इस मसीह होने के नाते हमें देखना है कि जो भौतिक चीजों से जो आकर्षण होता है उनसे हमें बचना है। The lust for the money is a root for all the evil. और तो जो पैसों के प्रति लालच सारी बुराइयों की जड़ है। And you see what happens afterwards. Because of that one person, 24,000 people died in one night. और हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति के कारण एक रात में 24,000 लोग मर गए। And you see that's what happened when one Christian fall in Christian life, along with him those who are seeing him, they also fall. और इसी प्रकार से तो होता है कि जब एक विश्वासी अपने विश्वास से गिरता है, उसके साथ साथ उसको देखने वाले भी गिर जाते हैं। And Paul says in his writing in the first Corinthians, he says that let not any one of you become a cause for the stumbling block for your brethren. और इसी प्रकार से तो पौलुस कहता है कि होने पाए कि तुम्हारे बीच में कोई भी किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण न बने। Don't become a stone for the stumble of your neighbor, of your friend, of your co-Christian fellow. तो तुम एक इस प्रकार का पत्थर, रास्ते का ठोकर का पत्थर मत बनो कि किसी को ठोकर खा के अपने भाई के लिए ठोकर का कारण या गिरने वाला बन जाए। So let our life become a model. We may not kill like a 24,000 Christians, but we may become at least cause for the fall for one Christian. आइए तो हम हमारा एक ऐसा जीवन बन जाए कि हम ऐसे 24,000 लोगों को मारने वाला ना बने, परंतु एक व्यक्ति को बचाने वाले बने। Through our life, let one Christian may come to know Jesus Christ. और होने पाए कि केवल हमारे जीवन में कम से कम एक व्यक्ति मसीह के पास आ जाए। Our life becomes so much, a kind of symbol of the life of Christ, that when people see, they can realize that it is a man of God and we have to become like होने him. पाए कि हमारा जीवन इस प्रकार से बन जाए कि हमारे मसीह के समान बन जाए कि लोग जानने पाए, कम से कम एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानने पाए हमारे। And let's quickly, this time is very less, let's quickly turn to the third person. आइए हम तीसरे व्यक्ति की तरफ जाएंगे। Who is the third person there? और तीसरा व्यक्ति कौन है? Who represent the attitude of the world. और जो संसार के स्वभाव को प्रस्तुत करता है। Now who was this Korah? और जो कोरे कौन थे? Who was this Korah? Who will tell me? Who was this and what happened? ये कोरा कौन थे और इनके साथ क्या हुआ? Korah was the worship leader. और कोरा जो था वो
आराधना का संचालन They were the करने वाला people लोग who हैं। used to lead the worship in the temple of God. और ये वो लोग थे जो परमेश्वर के भवन में आराधना का संचालन These were करते the people who always used to live in the presence of God. थे। और ये तो वो लोग थे जो हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। Korah and his sons were chosen to sing the songs for the praises of God Almighty. वो कोरा और उसका परिवार परमेश्वर की जो महासर्वशक्तिमान है उसकी आराधना करने के लिए अलग किए गए थे। God had selected these people to serve the Lord. और इन परमेश्वर ने लोगों को चुन लिया कि वो उसकी सेवा करें। God knew these people will serve me and sing the songs for my glory. और परमेश्वर ने को अलग किया कि ये लोग गाना मेरी महिमा के लिए गाएंगे। But then what happens in their life? What do we see? Why these people are becoming? Their names are given here. और क्या हुआ इनके साथ और किन जीवन इन लोगों ने किया कि इनके नाम इस पुस्तक में लिखे गए। What happened? Bible college students, और विद्यार्थी बताएंगे what happened? You got to study Bible a lot. और आपने बहुत बाइबल का अध्ययन किया है। Huh? They rebelled against God and the earth got open and they went inside. और उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया और धरती फट गई और वो जमीन में जीवित ही So you फंस गए। see there pride. और हम वहाँ देखते हैं घमंड। They were so pride they do not want to subject themselves to the authority of God. और उन्होंने हम देखते हैं कि वो इतने घमंडी थे कि वो परमेश्वर के अधिकार के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहते थे। So one theologian wrote about the Korah, one good article, and he said they had the attitude of Luciferic attitude. एक धर्मी वैज्ञानिक ने इस प्रकार से लिखा कि कोरा लोगों के पास जो शैतानिक जो लूसीफर का स्वभाव था। They had the attitude of Lucifer. और उनके पास लूसीफर का स्वभाव था। Had all the talent, all the ability, all the skills, everything, but still against God. उनके पास हर प्रकार का गुण था, वो निपुण थे, इसके बावजूद भी वो परमेश्वर के विरुद्ध में थे। Today also you can see people in the Christianity, they are so talented, they are blessed, they have good ability, they have many things, they can preach good, they can sing good, they can play the instrument good, they have many abilities in different area, they can work good, they have good organizational mindset, they can put their hand somewhere and can make it flourish, but still they are against God. हम देखते हैं कि ऐसे हमारे मसीह जगत में हम देखते हैं कि ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास गुड अच्छे अनुभव हैं, उनके पास अच्छे ऐसे वो क्रियाशील हैं कि वो किसी को भी छू ले, कहीं भी चले जाए तो पैसे की बारिश हो जाए, उसके बावजूद भी वो अपने घमंड में जीते हैं। And they have the pride, and pride is the one thing God hates. और वो घमंडी है, लेकिन घमंड एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर जिससे घृणा करता है। The beginning of the sin begins with pride. और जो पाप का आरंभ घमंड से होता है। And from there it moves toward many kinds of variety of और sin. वहाँ से फिर वो कई प्रकार की शाखा में बिखर जाता है। So my dear friend, in this evening when we are looking to God and trying to become like Jesus, let's understand that Korah should not be inside of us. और जब हम इस शाम के समय में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और होने पाए कि ये जो कोरा के समान जीवन हमारे अंदर ना होने पाए। When God had appointed Korah, they rebelled against the man of God, Moses. और जब परमेश्वर ने इन कोरा लोगों को नियुक्त किया, उन लोगों ने परमेश्वर के दास मूसा का विरोध किया। Sometimes we also oppose the authority whom God has put before us. और कई बार ऐसा होता है कि हम भी परमेश्वर के दासों को जिन्होंने परमेश्वर ने नियुक्त किया उनका विरोध करते हैं। Sometimes in our church we have pastors. हमारे चर्च में पासवान है। In our Bible college we have principal and the warden and all kind of authority. और हम कॉलेज में देखते हैं कि जो वार्डन है और जो प्रिंसिपल है और कई और प्रकार के जो अधिकारी लोग हैं। Sometimes believers oppose the pastor and student oppose the authority of the college. और हम देखते हैं कई बार विश्वासी लोग जो हैं पास्टर लोगों का विरोध करते हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं जो अपने अधिकारियों का विरोध करते हैं। Because in Bible you see, Bible says God is the one who brings man in the power and in the authority. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर है जो लोगों को उस अधिकार में और पावर में लेके आता है। And if you do not accept them, speak against them, speak behind them, make a plot against them, you are no other than the Korah. और यदि आप उनकी पीठ पीछे किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो आप कोरा के
से कोरा की समान ही है। You have the spirit of Korah inside you. और इसलिए तो आपके अंदर कोरा की आत्मा है। And time and again we again forget the believer and the behavior of Christ and we become like Korah many a और times. ऐसे कई बार होता है कि हम मसीह के स्वभाव को छोड़कर और कई बार अपने जीवन में कोरा के समान बन जाते हैं, जो अपने अधिकारियों के प्रति पीठ पीछे टीका टिप्पणी करते हैं। We speak about our pastor, हम अपने पास्टर के विषय में बात we करते हैं speak about associate pastor, और हम जो उसके सहपाठी के सहभागी पास्टर के विषय में we बात speak करते about our president, हैं। हम अपने उसे अध्यक्ष के विषय में बात करते हैं। we speak about our teachers, हम शिक्षकों के विषय में बात करते we speak against our warden, हैं और हम अपने उसे वार्डन के विषय छात्र नायक के विषय में आगे से बात करते हैं। and through this we reflect the spirit of Korah, that is a pride. यदि हम ऐसा करते तो हम इस बात को प्रकट करते कि हम एक कोरा की आत्मा से भरे हुए लोग। Let's close our eyes in this evening. आइए अपनी आंखों को हम बंद करें संध्या समय। I had a lot of things to share with you, but time doesn't permit. और मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें थी बताने के लिए, लेकिन समय मुझे। But then I think the Spirit of God has given us enough for this evening. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें पर्याप्त दे दिया संध्या के लिए। I believe, if you believe with me, say with me, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Let this word which the Spirit of God has given in our heart may stay for the long time. आइए होने पाए कि जो परमेश्वर की आत्मा इस समय में जो हमें दी गई है वो एक लंबे समय तक हमारे अंदर बनी रहे। Many times we hear the word and after an hour or a day or a night or a week, it disappears. और कई बार हम ऐसे देखते हैं कि आत्मा आती है और चली जाती है। We get the word and word stays for an hour, one night and one week and then goes away. हम देखते हैं कई बार हम वचन को सुनते हैं एक घंटा और एक दिन और एक हफ्ता रुकता है, उसके बाद फिर चला जाता है। But let this word in this evening, the attitude of Jesus may remain in us forever and ever. होने पाए संध्या के समय में जो परमेश्वर का जो स्वभाव है हमेशा हमेशा के लिए हमारे अंदर बना। My dear Christian brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we are the weak vessels. हम एक कमजोर पात्र हैं। We are the weak vessels. हम एक कमजोर पात्र हैं। Many times we fall down. कई बार हम गिर जाते हैं। Many times we begin the spirit of Korah, Cain and Balaam. और कई बार हम उस कोरा बलाम और उस केन की आत्मा को पा लेते हैं। And many times we reflect the attitude of hatred, envy, the greedy, and then the spirit that is against the attitude of Jesus Christ. और कई बार जो ऐसी हम आत्मा से भर जाते हैं जो ईर्ष्या, जलन और नफरत की होती है, जो यीशु मसीह के स्वभाव के विरुद्ध है। But thank God for the grace of Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का और यीशु मसीह का अनुग्रह के लिए धन्यवाद। If you did not die till this point and you are alive, you have one more chance to come back to और God. यदि अभी तक आप मरे नहीं हो रहा और अभी आप जीवित पा जाते हैं समय तक, तो ये परमेश्वर आपको एक और मौका देता है। If your respiratory system working and you're breathing, you still have a chance. यदि आपका जो अंदर से जो सिस्टम कार्य कर रहा है तो आपके पास अभी भी एक और मौका है। You have chance to come back to God. आपके पास एक अवसर है कि आप परमेश्वर के पास आ जाएं। And when we study the life and ministry of Jesus Christ, the first message of this year, the first sermon on this theme, let our attitude become like Jesus और Christ. आज रात्रि में जब हमने परमेश्वर के वचन के जो यीशु मसीह की सेवा उनके जीवन कार्य से सुन रहे हैं, तो ये पहला संदेश हमारे जीवन को बदल दे। Let our attitude may become the attitude of Jesus Christ, और होने पाए कि हमारा जो मनोवृत्ति है यीशु मसीह के समान हो जाए, which was almost against the worldly attitude of Balaam, Cain, and Korah. और जो तो पूरी रीति से संसार की मनोवृत्ति से बिल्कुल विपरीत थी, उस कैन, बलाम और कोरा के समान। So let's again close our eyes and start giving thanks, open our mouths for the message of God for this evening. Let's open our mouth, let's give thanks to Lord. Let's start praising for Him. अपने मुंह को खोलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस घर के लिए धन्यवाद करें, इस परिवार के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए। हम कोई भी नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने हमसे बात किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके वचन के लिए। एक और मौका दिया उसने हमें पश्चाताप करने का, एक और मौका दिया उसने हमें उसके पास वापस आने का। होने पाए ये वचन हमारे जीवन को रूपांतरित कर दे, होने पाए ये वचन हमारे जीवन को बदल करके रख दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू।
अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके अंदर अब तक मसीह का स्वभाव नहीं पाया जाता, अपने मुख को खोलकर अपने आंसुओं के साथ अपने परिवार के लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। यदि आपके परिवार में अब तक कोई ऐसा है जिसके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आया, संसारिक स्वभाव उसके अंदर पाया जाता है, जलन की भावना, चिढ़ की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, लालच की भावना, घमंड की भावना, यीशु का स्वभाव के लिए आज की रात में आप प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे दिलों में कब्जा करे, हमारे परिवार के रिश्तेदारों के लिए जो आज की शाम में इस सभा में नहीं है, जो मसीह यीशु में विश्वास नहीं करते, जो सांसारिकता में पाए जाते हैं, अपने मुखों को खोलकर आप उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। होने पाए कि हर में से हर एक का स्वभाव यीशु का सा स्वभाव हो जाए। इस वर्ष का ये पहला संदेश, इस वर्ष का ये पहला संदेश जो मसीह यीशु के स्वभाव पर है, होने पाए इस पूरे वर्ष भर हमारा स्वभाव यीशु के समान हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। इस घर के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। पूरे मंगल परिवार के लिए प्रार्थना करें। भाई मंगल के लिए, उसके सेवका, उसके व्यवसाय, उसके कार्य के लिए प्रार्थना करें। उनकी प्रिय पत्नी के लिए प्रार्थना करें। दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें। होने पाए ये जो सभा इस वर्ष की शुरुआत में यहाँ रखी गई है, इस पूरे परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। होने पाए सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए, सारे रुके हुए काम यीशु के नाम से खुलने पाए, सारे ऐसी आत्मिकता के बंधन जो आत्मा में बढ़ने से रोकते हैं यीशु के नाम से टूटने पाए। एक आजादी का यह दिन हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करें हर एक विश्वासी जो इस घर में यहाँ पर आए हैं आशीषों को पाने पाए। घर में दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके पढ़ाई लिखाई में प्रार्थना करें। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनके बुद्धि और ज्ञान को खोलने के लिए प्रार्थना करें, मसीह के स्वभाव में वो बढ़ने पाए। आइए हम सब इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। जहाँ जहाँ सभाएं चल रही है उन घरों के लिए प्रार्थना करें, उन वक्ताओं के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा जब हम सभा का समाप्ति कर रहे हैं, अंतिम प्रार्थना आशीर्वाद के साथ रेवरेंड सत्यनारायण सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए एक बार और संध्या के समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज रात्रि के समय हमारे बीच में आया है, हम समर्पित कर दें। मनुष्य कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। हमारा जीवन कई बार पापों से भर जाता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर बैठते हैं, अधिकारियों के प्रति बलवा कर बैठते हैं, अपने आप से बलवा करते हैं। कई बार हम अपने भाइयों के प्रति क्रोधित होते हैं, उनको आत्मिक रीति से हम मार डालते हैं। जो वचन हमारे बीच में आया है, यदि हमने अपने जीवन को कहीं भी कमी पाई है तो होने पाए कि परमेश्वर की आत्मा से हम सबको उसके प्रति अधीन कर दे। परमेश्वर की आत्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति हम अधीन कर दें। प्रभु जी हम सहायता धन्यवाद देते हैं कि तेरे दास के लिए तूने बहुत आज से सामत के साथ हमारे बीच में इस्तेमाल किया, उनको बहुत आज से और भी इस्तेमाल करना हम धन्यवाद देते हैं। जो आप वचन हमारे बीच में आया है, होने दे कि वो हम केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी आत्मा पाई जाती है जिससे हम बंधे हुए हैं परमेश्वर और हम निकल नहीं पा रहे हैं, होने दे कि तेरी आत्मा हमारे उन बंधनों को तोड़ दे, आजादी का जीवन दे प्रभु जी, आनंद से भरा हुआ जीवन दे परमेश्वर, हर एक बुराई से मुक्त जीवन दे दे। यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था, जिसने कभी पाप नहीं किया था, जिसके मुंह से कभी कोई गाली नहीं निकली थी, उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, उसने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया प्रभु जी, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर हो जाए। हमारे एक नमूने का जीवन, हम किसी के सामने ठोकर का कारण नहीं परंतु आशीष का कारण बन जाए। हमारे जीवन से कम एक व्यक्ति तुझ जानने वाला बन जाए प्रभु। ये जीवन छूटने से पहले हम एक व्यक्ति को तेरे समीप लाने वाले बन। धन्यवाद प्रभु जी मंगल भैया के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, पत्नी के लिए आशीष दे। उनकी हर एक आवश्यकता को तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक कमी घटी को तेरे हाथ सौंपते हैं, उनकी गुप्त नीतियों को तेरे हाथ सौंपते हैं। तेरे दास की शुद्धि लेना प्रभु, रेवरेंड निखिल को जो तूने सेवा करने के लिए मौका दिया प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। और भी तू आने वाले दिनों में बहुत आस इस्तेमाल कर उनकी आवश्यकता को तेरे हाथ में सौंपते हैं। एक एक बच्चों को तेरे हाथों सौंप देते परमेश्वर, उनकी बुद्धि को तो छू ले और इस संसार से हटकर देवी बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि से परिपूर्ण करते। एक विश्वासी को तेरे हाथों सौंपते हैं। जब इस संसारिक जीवन में हम रहते हैं, कई चिंताएं, कई परेशानियों से होकर जाते हैं प्रभु जी, इन सब के मध्य में हम आनंदित जीवन बिताने वाले बन सकें प्रभु जी।
हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते, उनकी आवश्यकताओं को तेरे हाथ सौंपते हैं, उनकी एक एक प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक नया निर्णय के साथ जब हम यहाँ से निकलते हैं तो हमारा संग साथ हो, हमारी प्रार्थना में तू आशीष दे, उनको सुनकर हाँ उत्तर आदमी के साथ उत्तर दे दे परमेश्वर पिता। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे दासगढ़ जहाँ जहाँ पाए जाते हैं सबको तेरे हाथ सौंपते हैं। दोबारा मिलने तक परमेश्वर अपने पवित्र पंखों तक नीचे हम सब कुछ छिपा कर रखते हैं प्रभु जी। इस विनती को सुन ले, इसको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल कीजिए पिता। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, पवित्र आत्मा की सेवा पर संगति अब से लेकर प्रभु के द्वितीय आगमन तक प्रार्थना किया है विषय के साथ, विशेष करके इस परिवार के साथ जिन्हें इस प्रार्थना का आयोजन किया, हमेशा हमेशा होते रहते। आमीन। हालेलुया। हाँ, 2 मिनट बैठेंगे। आप सबके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष देता है। और कैसे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना नहीं, महिमा अंजी एंजल, ओके एंजल, वाह ठीक है। लुकोस ब्रदर है, प्रार्थना करेंगे इसके। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पहले सुंदर संस्कार के प्रभु जी, प्रभु जी मेरे भाई के परिवार को आशीष से बरकत दे, भंडार से भंडार को भरपूर रखे परमेश्वर, ये संस्कार आगे बल प्राप्त करें और आपको महिमा के कार्यों में लगाने वालों को आशीष दे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। थैंक यू।